بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پیر صاحب پگارا کا شکر گزار ہوں، اور ہمارے دوسرے جو جی ڈی اے کی سندھ کی لیڈرشپ تھی ان کا بھی، کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھے انداز میں ویلکم کی ہے، اور پیر صاحب نے ہمیں جو آنے والی سینٹ کی الیکشن ہے اس میں اپنی سپورٹ کی بھی یقین دہانی کرائی ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ دیکھیں، پاکستان کی جو سینٹ کی الیکشن ہے یہ ہمارے جمہوری عمل کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور سینٹ پاکستان کا ایوان بالا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی الیکشن ایک ایسے ماحول میں ہو جو شفاف ہے، اور یہ مہذب انداز میں ہونی چاہیے۔ اس میں ہمیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے استعمال کر کے ایک دوسرے کو لین دین کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس سارے سلسلے کو اس انداز میں چلیں جو آئینی اور اخلاقی انداز میں ایسا ہو کہ پاکستان کے لوگ اس پہ فخر کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کوئی ذاتی مقابلہ نہیں، خصوصی طور پہ جو اسلام آباد کی سیٹ ہے، یہ دو سیاسی اتحاد پارٹیز جو ہیں ان کے درمیان ایک پولیٹیکل مقابلہ ہے، تو اس کو ذاتی انداز بھی ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی الیکٹوریٹ ہے یہ اس کی مرضی ہے، اور انہی کی مرضی جو ہے آخرکار فیصلہ کن ثابت ہونی چاہیے۔ ہماری جو استدعا ہے، ہماری جو گزارش ہے وہ یہ کہ ہر ایک اپنی جو ایفیلیشن ہے، جو ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ نے چلا ہے اور ان کو یہاں پہنچایا ہے، تو وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس انداز میں ووٹ کریں جو کہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اقتصادی طور پر یہ ملک کس حالت میں تھا جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت آئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $20 ارب تھا، یعنی $20 ارب اضافی اس ملک سے باہر جا رہے تھے۔ پچھلے جو 5 سال گزرے اس میں ڈالر کو جان بوجھ کے سستا رکھا گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو عادت ڈالی گئی کہ وہ باہر کی چیزیں پسند کریں، اور یہاں انڈسٹری کو نقصان ہوا، اور ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار جو پچھلے 5 سال گزرے اس میں 0 سے بھی کم تھی، اور ڈالرز آدھے سے بھی کم رہ گئے، اور ملک کو ایک خطرہ ہو گیا کہ ڈالرز اگر کسی کے پاس نہ ہوں، اس میں بڑی کوئی معیشت دان ہونے کی ریکوائرمنٹ نہیں، اگر کسی بھی ملک کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیسے اپنے لوگوں کی بیرونی چیزوں کی ضروریات پوری کرے گا۔ تو پاکستان ایک ایسی سچویشن میں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، اور بہت سخت فیصلے کرنے پڑے۔ ان سخت فیصلوں میں خصوصی طور یہ تھی ایک بات کہ حکومتی اخراجات کو کیسے کم کیا جائے، اور جو فیصلہ کیا گیا کہ حکومتی اخراجات کو سختی سے کم کیا جائے اور اس کی بنیاد ڈالی جائے اوپر سے، یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، کیبنٹ، جنرلز، فل سیکرٹریز، یہاں سے شروع کیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ دوسری جانب جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس کے نظام کو بہتر انداز میں چلایا گیا، اور کرونا سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، بیرونی خسارہ جو $20 ارب تھا، وہ اب پازیٹو ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائمری بیلنس ہے ہمارا، یعنی ہمارے حکومتی آمدنی اور اخراجات کا فرق، وہ بھی سرپلس میں ہو چکا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کتنے محنت اور کتنے اچھے انداز سے کرونا وائرس سے نپٹا، اور وسائل کی کمی کے باوجود پاکستان میں $1250 ارب کا ایک اکنامک پیکج دیا گیا، $1250 ارب کا پیکج دیا گیا، جس کی دو بنیادی جو تھیں ترجیحات تھی۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ میں کیش پہنچایا جائے تاکہ وہ اس مرحلے سے، مشکل مرحلے سے اچھی طرح سے نپٹ سکے، اور آپ نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ خاندانوں کو پیسے بانٹے گئے، ہر قصبے، ہر شہر، ہر گاؤں میں، خصوصی طور پر خواتین کو،
और उसकी शर्त फ़कत एक थी कि वो पाकिस्तानी हैं और दोम ये कि वो मुस्तहक हैं। इसमें कोई सियासी, कोई मजहबी, कोई इलाकाई और जो है कंसिडरेशन नहीं डाली गई। और दूसरा जो बुनियादी हमारा गोल था कि पाकिस्तान में जो लोग नौकरियां पैदा कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, उनको मदद दी जाए। तो आपने देखा कि उनके लिए बिजली की कीमतें कम की गई, उनके लिए गैस की कीमतें कम की गई, उनके लिए जो कर्ज ले रहे हैं वो उसमें हुकूमत ने अपनी जेब से पैसे डाले। और अब जबकि कोरोना के माहौल में हमारे आसपास के मुल्क जैसे बांग्लादेश, हिंदुस्तान, उनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। और दुनिया सराह रहा है पाकिस्तान की जो अप्रोच थी कोरोना वायरस के दौरान। आखिरकार जो अहम चीज़ है, जो इन दो इत्तेहाद को एक से दूसरे को यूनिक यानी मुनफरद बनाती हैं, वो उसमें एक बड़ी चीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की शख्सियत है। और उनका जो बुनियादी महवर है वो पाकिस्तान के अवाम है, ख़ास तौर से वो जो कमज़ोर लोग हैं या कमज़ोर इलाके हैं। और उन्होंने इसीलिए एहसास का बजट 100 बिलियन रुपए से बढ़ाकर 200 बिलियन किया, 600 अरब रुपए का एक पैकेज दिया तरक्याती प्रोग्राम के नाम से, और सब्सिडीज दी ताकि लोग महंगाई के दौर में निपट सकें। तो पाकिस्तान में 72% लोगों को बिजली की सब्सिडी हुकूमत दे रही है, 92% लोगों को गैस की सब्सिडी हुकूमत दे रही है, 100% लोग जो ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं उनको सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। अब जब गंदम की मुल्क में शॉर्टेज हुई तो कोई 4 मिलियन यानी तकरीबन 40 लाख टन गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई, जिस पे तकरीबन $1 अरब का खर्च हुआ। और हुकूमत ने उन सूबों में जहां पर इनकी हुकूमत थी वहां पे कहा कि आप सस्ते दामों रिलीज करें ताकि लोग जो हैं इस दिक्कत से, इस शॉर्टेज के ज़माने से बेहतर अंदाज में निकल सकें। यूटिलिटी स्टोर्स में 5 बड़ी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पे बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत ने सब्सिडी दी। तो इस सिलसिले में मैं काफ़ी चीज़ें कह सकता हूँ। सवाल ये ले, आपने जो कहा कि बहुत सारी चीज़ों को सब्सिडी, अभी तो 2 दिन पहले ही आप देखें कि चल रहा था कि तेल की कीमतें बढ़ गई, ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं घी की बढ़ गई, दालें बढ़ गई। और पीटीआई सिर्फ एक ही चीज लेकर आती है जी, हमने अरबों रुपए बांट दिए फी का खानदान जो 1200 रुपए, तो ये 12,000 रुपए, तो ये कब तक ये चीज जो है वो चलती रहेगी? आवाम को कहीं रिलीफ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, 2-3 सवाल ले लेते हैं फिर उसके जवाब देते हैं। सवाल है कि अभी आपने कहा कि इमरान खान की हुकूमत से पहले जो मईशत बहुत ही दगरगु थी, आप हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और इस वक्त भी महंगाई की जो सूरत हाल है, अवाम जो है पीटीआई की हुकूमत तो वज़ीर आज़म को बहुत ही टमाटर की कीमत अब तो कम हुई है, आप कैसे देखते हैं कि जब मईशत को आप ठीक नहीं कर सके तो आपको वोट लोग जो पीटीआई के अंदर के लोग आपकी मुखालफत करें, आपको वोट क्यों दें? जी ये बताइएगा, यहाँ पर आप आज यकीनन सेनेट इलेक्शन के हवाले से आए, अपने दादियों से मिल रहे हैं, एमक्यूएम वाले भी शिकवा कर रहे हैं, खुद जीटीए वाले जो हैं वो शिकायत बार बार यही करते रहे हैं कि उमरकोट का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे उनके कारकुनान गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन वफाकी सरकार ने हाल तक नहीं पूछा। आज हलीम आदल शेख साहब, वो भी आपकी पार्टी के ही हैं, आपके जो एमपीए है वो आपको खतूत लिखे जा रहे हैं कि हमारी मदद करो, एमपीएस चीफ हाउस के सामने बैठे हैं, लेकिन वफाकी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जी जरदारी साहब के साथ आपने काम किया है, आज जरदारी साहब की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि आप इस्लामाबाद से लड़ें और आप जीत गए हैं, तो उनको तो नंबर गेम करना आता है, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? आप समझते हैं? और कोई बता दीजिएगा, माशाल्लाह आपने तकरीर बड़ी अच्छी करी, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देते हैं। ये बता देगा पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है और पीटीआई बोलती है कि पिछली हुकूमतों के अंदर जो है वो महंगाई हुई और ये तमाम तर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज खराब हुई, तो पहले हुकूमत में भी आप ही फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, दोबारा आप ही के पास जो है फाइनेंस की कमान है, तो कैसे समझते हैं? और आप भी कर लिया, मेरे ख्याल में आप अभी कर रहा हूँ जवाब, आप तो वहाँ भी कर चुके हैं। शुक्रिया बोल टमाटर की कीमतें बढ़ी
नहीं, तो आपको बता के सही इस्तेमाल करें। जी बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, तो जी मुझे क्या इस्तेमाल जी देखें, ये जो आपने सवालात किए हैं बहुत अहम सवालात हैं, और खुसूसी तौर पे कीमतें जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर पाकिस्तानी को मुतासिर करती हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर इस वक्त कोई अवलीन तरजीह है तो वो ये है कि कैसे कीमतों को रोका जाए बढ़ने से। आपको पता है कि कई चीज़ें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं और उसकी कीमतें किसी प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के बस में नहीं होती हैं। लेकिन जब तेल की कीमतें घटी, आपने देखा पिछले साल तो बहुत ज़बरदस्त कमी की गई पेट्रोल की कीमतों में। अब जबकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है इसमें भी अगरचे बैरूनी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ी, लेकिन हमने कहा कि, और ये प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पर कहा कि हम पेट्रोल के ऊपर कमी यहाँ न होने दें और उसकी बजाय हम टैक्स जो है कम कर दें। तो ये एक फैसला था। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि अगर दुनिया के अंदर ये जो घी है उसकी कीमत बढ़ रही है तो भी हम सोच रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ने से रोका जाए, यहाँ पर इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स है उनको कम करके। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे कीमतों को रोका जाए बढ़ने से, और साथ ही साथ टैक्स की जो कलेक्शन है उसको भी बिल्कुल कम न कर दिया जाए, क्योंकि जो लोगों की ज़रूरियात हैं पीने के पानी की या तालीम की या सेहत की या रोड्स की या एयरपोर्ट्स की या ज़राअत के अंदर तरक्की लाने की, उसके लिए हुकूमत को पैसा चाहिए। और हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम सिर्फ बाहर के लोगों से उधार लेते रहें। आपको मैं अंदाज़ा दूं कि इतने उधार लिए गए कि पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 6,500 अरब रुपए फ़कत माजी के कर्ज़ों के सूद में देने पड़े। तो ये एक कुदरती बात है कि हुकूमत के लिए चैलेंज है कि कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएं, और इसीलिए इस वक्त मुकम्मल कोशिश हो रही है कि जो गंदम की आने वाली फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो ज़राअत के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इनको अच्छे अंदाज में मिलने के लिए कोशिश हो रही है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि चूंकि बुनियादी कोशिश यही है कि लोगों को कीमतें बढ़ने का जो बोझ है उससे बचाया जाए, इसलिए सब्सिडी दी जा रही है और 70 लाख लोगों को मुसलसल कैश दिया जाएगा ताकि वो इस चीज़ से अपने आप को मैनेज कर सकें। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ सब्सिडीज दी जा रही हैं उसमें कोशिश ये हो रही है कि उन लोगों तक ये सब्सिडी का फ़ायदा पहुँचे जो कि कमज़ोर तबके हैं या मिडिल क्लास तबके हैं। कुछ सियासी सवाल आपने किए, मेरे ख्याल में असद उमर का